যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম রে। হরে কৃষ্ণা, ডানোর প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় আছি, চতুর্বিংশতি পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 335 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যে 24.335 অনওয়ার্ডস। 335 নম্বর শ্লোক। শ্রীমূর্তি লক্ষণ আর শালগ্রাম লক্ষণ, শ্রীমূর্তি লক্ষণ আর শালগ্রাম লক্ষণ, কৃষ্ণ ক্ষেত্র যাত্রা কৃষ্ণ মূর্তি দর্শন। কৃষ্ণ ক্ষেত্র যাত্রা কৃষ্ণ মূর্তি দর্শন। শ্লোকার্থ: শ্রীমূর্তির লক্ষণ, শালগ্রাম শিলার লক্ষণ, বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা আদি শ্রীকৃষ্ণের লীলা ক্ষেত্র যাত্রা এবং শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ দর্শন করার বিধি বর্ণনা করো। श्रीमूर्ति लक्षण, मूर्ति का क्या क्या लक्षण में बताया था। मुकुंद पुराण वो हाथ नीचे, यानी क्या क्या चीज से मूर्ति बन सकता है। शालिग्राम लक्षण, ऑथेंटिक शालिग्राम कैसे पहचानना है, वो लक्षण क्या क्या है। ठीक है, कल हम लोग शालिग्राम का दर्शन किया था। कौन सी नदी में मिलता है शालिग्राम, चंदा माता जी? प्रभु जी गंडकी नदी में, नेपाल में जो है। गए हुए हैं प्रभु जी, वहाँ गए हैं, देखे भी हैं। हाँ, नेपाल हुआ है। हाँ हाँ प्रभु जी, पशुपतिनाथ गए थे ना, अभी हम लोग नेपाल ले वहाँ जाना देखे पड़ेगा आप थे। लोगों को, आपको ले जाना पड़ेगा हम लोग सबको। ठीक है, आप टूर गाइड बनेंगे। ठीक है प्रभु जी। Yes, एकदम शाह जी। ओके, शालिग्राम शिला लोकन, वृंदावन, मथुरा, দ্বারকা আদি শ্রীকৃষ্ণের লীলা ক্ষেত্র যাত্রা। ঠিক আছে, যাত্রা এবং শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ दर्शन करार विधि वर्णना करो। तो कल माता जी ने बताया, इंद्राणी माता जी, कैसे हम लोग भगवान का विधि, दर्शन का विधि क्या है, नीचे से ऊपर, चरण से मुखमंडल तक। यस, अगला श्लोक 336। नाम महिमा नाम अपराध दूरे बर्जन, नाम महिमा नाम अपराध दूरे बर्जन, বৈষ্ণব লক্ষণ সেবা পরাধ খণ্ডন। বৈষ্ণব লক্ষণ সেবা পরাধ খণ্ডন। ভগবানের নামের মহিমা কীর্তন এবং নাম অপরাধ সাবধানে বর্জন করার কথা বর্ণনা করবে এবং বৈষ্ণবের লক্ষণ ও সেবা অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা বর্ণনা করবে। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ আস্তে 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 এবার রিডিং কম্পিটিশন হয়ে যাবে। শান্ত শান্ত। ভগবানের নাম মহিমা কীর্তন, গ্লোরিজ অফ হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র অ্যান্ড নাম অপরাধ করার বর্জন করার কথা বর্ণনা করবে এবং বৈষ্ণবের লক্ষণ। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अ वैष्णव, भगवत गीता में आता है, तो इसके बारे में हरि भक्ति विलास में भी आता है। वैष्णव का क्या क्या गुण है, ये सब गुण देखकर हम लोग पता है यस ही इज अ वैष्णव। ও সেবা অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা বর্ণনা করো। क्या क्या सेवा अपराध है, अभी प्रभुपाद जी बोल, अभी सब कुछ बता देंगे, देखिएगा तात्पर्य में। यस माता जी। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ বা কীর্তন করার সময় 10টি নামাপরাধ যাতে না হয় সেই সম্বন্ধে সর্বদা খুব সাবধান থাকতে হয়। ভক্ত যদি অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের শ্রী বিগ্রহের আরাধনার পন্থা অনুসরণ করেন তাহলে তিনি অচিরেই শুদ্ধ বৈষ্ণবে পরিণত হবেন। শুদ্ধ বৈষ্ণব ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তিপরায়ণ এবং তিনি কখনোই ভক্তিমার্গ থেকে বিচলিত হন না। তিনি সর্বদাই ভগবানের আরাধনায় যুক্ত। শ্রী বিগ্রহের সেবা অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন থাকা উচিত। স্কন্দ পুরাণের অবন্তী খণ্ডে শ্রীল ব্যাসদেব স্বয়ং সেবা অপরাধের উল্লেখ করেছেন। সমস্ত সেবাপরাধ থেকে মুক্ত হওয়া উচিত। তুলসী পত্র দিয়ে শালগ্রাম শিলার পূজা করা উচিত। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভবনামৃত সংঘের প্রতিটি মন্দিরে শালগ্রাম শিলা পূজা করার প্রথা প্রবর্তন করা উচিত। শালগ্রাম শিলা ভগবানের কৃপার মূর্ত প্রকাশ। 64 উপচারে ভগবানের শ্রী বিগ্রহের পূজা করার যে পন্থা পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে তা করা খুবই কঠিন, কিন্তু ভগবান কৃপা করে শালগ্রাম শিলারূপে অবতীর্ণ হয়ে জীবকে অনায়াসে তার পূজা করার সুযোগ দিয়েছেন। हाँ, क्योंकि शालग्राम शिला, उनको आपको इतना कुछ नहीं कराना पड़ेगा, उनको ड्रेस पहनाना नहीं पड़ेगा। ड्रेस मैंने है नहीं,
और फिर इतना छोटा है तो इतना बहुत सिंपल हो जाता है सालग्राम शिला रहने से। लेकिन इस सिंप्लिसिटी से क्या गोपाल भट्ट गोस्वामी खुश थे? नहीं प्रभु, नहीं, उनका क्या इच्छा था? विग्रह हो जाए, अब ड्रेस विग्रह है, मैंने कुछ ड्रेस पहनाऊं, तैयार करूं, श्रृंगार करूं। हाँ। अभी हम लोग 32 प्रभु जी सालिग्राम शिला का कुछ प्राण प्रतिष्ठा लगता है क्या? हाँ, वो तो हो गई। प्राण प्रतिष्ठा दरकार नहीं, वो तो डायरेक्ट कृष्णा है। फिर भी हमको मालूम नहीं है। इस्कॉन मंदिर में रहता है प्रभु जी सालिग्राम शिला? हाँ, हम लोग का मंदिर में भी तो है। यहाँ राधा गोविंद मंदिर में है? हाँ, यस, एकदम लेफ्ट साइड में देखिएगा। झाला की जस्ट 2 साल हुआ है। ओके। वो उनका विग्रह है, उनका घर में। मायापुर में तो है बहुत बड़ा सा, वो देखे। वो गोवर्धन शिला है, बहुत बड़ा सा आप जो बोल रहे हैं। अरे गोवर्धन जी। सालिग्राम शिला इतना छोटा छोटा ही होता है। ओके। यस माता जी, सेवापराध। সেবাপরাধ 32 প্রকার। যানবাহন চড়ে বা জুতা পরে ভগবানের মন্দিরে গমন, মন্দিরে ভগবানের শ্রী না প্লিজ একটা করে প্লিজ। যানবাহন চড়ে বা জুতো পরে ভগবানের মন্দিরে গমন মানে কি? মানে কি বলুন, আপনি বলুন। আপনি তো পুরো গাড়ি চড়ে এসে আর জুতো পায়ে থাকে, সেই অবস্থায় ভগবানের মন্দিরে না গিয়ে মানে পা ধুয়ে ঢুকতে হবে, হাত পা ধুয়ে ঢোকা উচিত। যানবাহন চড়ে জিনিসটা বুঝান। যানবাহনে চড়ে তার মানে তো গাড়ি করেই আমরা যাই কলকাতায়, আর কিসে করে? জুতো পরে ভগবানের মন্দিরে গমন। ও, আর গাড়ি নিয়ে ঢোকাও উচিত না মন্দিরের মধ্যে, এরকম। ওই জন্য ফুল স্পিড পড়লে কিছু বোঝা যাবে না। गाड़ी पे चढ़ के कौन मंदिर में ढुक सकता है प्रभु जी? मालूम है तो अभी देखना पड़ेगा अंग्रेजी, इसीलिए रुकिए क्लैरिफाई करना पड़ेगा। हमको जितना दूर मालूम है, बहुत लोग गाड़ी से भगवान बैठ के भगवान को दर्शन करता है। आई थिंक इट इज रेफरिंग टू दैट। बहुत मंदिर में बाहर से दर्शन कर सकते हैं भगवान को। तो कोई कोई लोग है ना, गाड़ी से ऐसे मुंडी घुमाकर ऐसे ऐसे कुछ कर लेता है और कान पकड़ के ऐसे ऐसे कुछ कर लेता है। आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ दैट। लेट मी सी इंग्लिश में क्या लिखा है। आप लोग गाड़ी से उतरना नहीं चाहता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आगे जैसे आगे के जमाने में पालकी में लोग चलते थे ना, तो पालकी को एकदम भगवान के विग्रह के सामने लेके जाना मना। अच्छा, लेट्स सी इंग्लिश में क्या है। सेवर प्राण, वन शुड नॉट एंटर द टेंपल इन अ व्हीकल। इन अ व्हीकल, एंटर द टेंपल इन अ व्हीकल। हाँ, तब तो फिर पालकी का ही बात हो रहा है। यस। Shoes and slippers should be removed before entering the temple. तो एटलीस्ट उतना तो ऑस्टेरिटी करना ही पड़ेगा कि भगवान के मंदिर, भगवान तक आप पैदल जाइए। 2 नंबर, মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করে প্রণাম না করা। तो की उचित साथे साथे प्रणाम करा। भगवान को दर्शन करते ही तुरंत प्रणाम, पंचांग अष्टांग जो भी है तुरंत। नेक्स्ट, অপবিত্র বা অশৌচ অবস্থায় ভগবানের বন্দনা করা। अपवित्र বা অশৌচ, স্নান না করে বা এরকম কিছু। তো व्हाट इज द डिफरेंस? अपवित्र বা অশৌচ। So one should enter the temple after taking a bath. In other words, one should be very clean. ठीक है, मोटा मोटी एक ही, किंतु there is a difference of course। अगर वो कभी दूसरा दिन हम लोग डिटेल में डिस्कस करें। अपवित्र বা অশৌচ। नेक्स्ट, 4 नंबर, এক হস্তের দ্বারা প্রণাম। एक हस्तेर द्वारा प्रणाम, ऐसे ऐसे कुछ होगा ना, ऐसे ऐसे। এরকম করে চলে যায় তো রাস্তায়। नेक्स्ट, ভগবানের সম্মুখে অন্য দেবদেবীর প্রদক্ষিণ। नेक्स्ट, তার সামনে পা ছড়িয়ে বসা, হাত দিয়ে জানুদ্বয় বেষ্টন করে বসা। তার সামনে পা ছড়িয়ে বসা। दैट मींस इन अ वेरी रिलैक्स्ड मूड आप एकदम नहीं, भगवान के सामने अलर्ट रहना चाहिए। एक तो पैर ढककर बैठना चाहिए, पैर का जो नीचे वाला पोर्शन दिखना नहीं चाहिए। या नेक्स्ट,
হাত দিয়ে জানুদ্বয় বেষ্টন করে বসা, হাঁটু মুড়ে হাত দিয়ে ধরে বসে থাকে অনেকে। अच्छा, इंग्लिश में लिखा है इसका 7 नंबर का, one should not sit down before the deity with legs before the deities. One should not sit down before the deities with his legs crossed, nor should one touch his leg with his hand. हाँ, हम ये देखा, बहुत लोगों का देखा, बोलना नहीं चाहिए, हम बहुत सीनियर भक्तों को भी देखा, आई डोंट नो क्या जाने अनजाने में अपना पैर पकड़ता है, माने चरण का, हाथ से चरण पकड़ता है। सोचिए, बात करते करते कभी चरण पकड़ लिया, चरण का उंगली पकड़ लिया अपना, और फिर जप माला पकड़ लिया या ग्रंथ भी पकड़ लिया, हरे कृष्णा। आई हैव सीन दिस, अनजाने में हो रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन ये तो मैंने आई डोंट नो, आई मीन इस्कॉन में आने के आगे भी ये तो कॉमन सेंस है। अब पैर पकड़ने से तुरंत एटलीस्ट आसपास हाथ धोना, ऐसे करके पैर पकड़ लिया, कुछ सोचिए उधर थोड़ा खुजला रहा है तो पैर पकड़ लिया, चुलका लिया, थोड़ा ऐसे करके फिर बुक पकड़ लिया, जपमाला पकड़ लिया, आसपास बहुत लोग ऐसे करते हैं प्रभु जी। पंडित जी लोग तो कथा या हवन करते रहते हैं, अपने पैर को ऐसे ऐसे सहलाते रहते हैं, पता नहीं क्यों। ये अभ्यास हो जाने से तो ये बहुत बड़ा अपराध है। पुराना आदत जाता नहीं ना प्रभु। धो लेना चाहिए, ठीक है, वो हो सकता है, धो लीजिए, बार-बार धो लीजिए। या कंटिन्यू। শয়ন, ভোজন, শ্রী বিগ্রহের সামনে মিথ্যা কথা বলা। তো বলুন মাতাজি, কি শয়ন মানে কি? তার অপরাধ মানে না শুয়ে থাকা, শুয়ে না থাকা, ভোজন খাওয়া উচিত না সামনে বসে। तो एक सेकंड, तो भगवान का ऑल्टर खुला हुआ है, आप सो गया, ये अपराध है। तो रात में भी ब्रह्मचारी लोग, बहुत ब्रह्मचारी है जो मंदिर में सोता है, मंदिर का हॉल में सोता है, लेकिन भगवान का कर्टन दिया हुआ है, भगवान भी सो रहे हैं अंदर, दैट इज ओके। दोपहर को जब भगवान का पट बंद हो जाता है तब कुछ कुछ अगर भक्त लोग सो गया मंदिर में, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन भगवान का पट खुला है, आप भगवान के सामने सो रहे हैं, भगवान के सामने सो रहे हैं, तो ये अपराध नहीं होगा? तो वही है। फिर প্রভুজি এরকম তো অনেকের भगवान है, भगवान परम भोक्ता है, भगवान के सामने भोजन कर रहा है, वो अपराध हो जाएगा, तो इसलिए पट बंद करके फिर भोजन करना चाहिए। यस, इंद्राणी অনেকের তো ঘরেও বেডরুমেও প্রতিষ্ঠা থাকে ভগবানের, সেক্ষেত্রে পর্দা দিয়ে দিন, ওটাই মেন, পর্দা দিয়ে দিন, ठीक है, घर में ही ऑल्टर है, ठीक है, बट कर्टन दे दीजिए। यस, नेक्स्ट। শ্রী বিগ্রহের সামনে মিথ্যে কথা বলা। भगवान के सामने आपने झूठ बोला, एटलीस्ट भगवान के सामने तो झूठ मत बोलिए। प्रभु का दुकान में विग्रह है और दुकान में तो झूठ बोलना पड़ता है। हरे कृष्णा। ये पूछिएगा माता क्या करें, ठीक है? প্রভুজি গীতায় আছে না 18 অধ্যায় আছে যে যারা ব্যবসা করে তারা যদি কোনো ওই বেশি ঠকিয়ে নেয় বা কিছু বেশি নেয় তাতে কোনো পাপ হয় না। আমি লেখা দেখেছি, একদম পরিষ্কার লেখা আছে, তাতে পাপ নেই। तो उसमें भी लिमिट है झूठ बोलने का। आप मत प्लास्टिक का सामान दिखाकर मत बोलेगा ये गोल्ड का है, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ की लिमिट नहीं। आप बोल सकते हैं कि मैं ये 10 में खरीदा, आपसे 12 मांग रहा हूँ, हालांकि आपने 8 रुपया में खरीदा था। ये हो सकता है ना सरोज माता जी, ये अलाउड है। हाँ, लेकिन मत दिखाकर बोलिए ये तो सोना का है, देखिए ना एकदम 22 कैरेट, हालांकि ये चाइना का प्लास्टिक का है, वो नहीं करता, वो एथिकल है। और क्या तो ये भी, ये सामने कुछ भी होगा तो सबसे बढ़िया है आसपास ऐसे आचमन पात्र रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी क्लास कर रहे हैं आसपास, ये मालूम है ना, ये आचमन पात्र, बिकॉज हमेशा कभी कभी ऐसे होगा, कभी कभी ऐसे होगा, कभी कभी ऐसे होगा, वैसे वैसे बहुत कुछ होगा। लेके रखते हैं गंगा जी का छोट। हाँ, करेक्ट। अरे वो कुछ हुआ ना तो इसको पहले तो आचमन ही बोला जाता है प्रभु। हाँ, तो ऐसे रख सकते हैं। वो कलयुग का आचमन पात्र दिखा रहे हैं आपको, संगीनी माता दिखाइए, ये देखिए। अगर बुक छूना था ना तो हाथ में आचमानी कर। यस, ठीक है। और ये वैदिक युग का आचमनी पात्र है तो इसको सामने रखना जरूरी है। लेकिन हम बेड में बैठे ना प्रभु, इसलिए तो पंचपात्री। नेक्स्ट। শ্রী বিগ্রহের সামনে উচ্চ স্বরে কথা বলা।
तो ये अपराध क्यों है महामंत्री माता जी? भगवान की प्रार्थना में डिस्टर्ब और लोग भी बैठे हैं तो उस समय वहाँ पे डिस्टर्ब होगा, इसलिए बहुत जोर जोर से बातें नहीं बाकी लोग डिस्टर्ब होगा उसीलिए अपराध है। नहीं, भगवान के सामने सब प्रार्थना कर रहे हैं तो इसलिए भगवान को डिस्टर्ब होगा। ओ डिस्टर्ब होगा उसीलिए नहीं। ये सुषमा अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये भगवान का रेस्पेक्ट के लिए है कि हम लोग को भगवान के सामने जोर से नहीं बोलना चाहिए। यस, हाउ डेयर यू, भगवान के सामने आप जोर से बोल रहे हैं। अरे जोर से अगर बोलने का किसी का अपना ऑडरसिटी नहीं दिखाना चाहिए। हाँ ऑडेसिटी, हाँ कैसे उद्दंडता ना की बोले ना बांग्ला, हाउ डेयर यू, ऑडेसिटी कैसे हुआ आपका भगवान के सामने उच्च स्वर में आवाज बोल। आगे तो हम लोग अपने गार्जियन के सामने भी उच्च आवाज में नहीं बात करते। ससुर जी जैसे थे, ससुर जी साइलेंट धीमे, तो उन लोग को रिस्पेक्ट दे सकते हो तो भगवान है। यस, नेक्स्ट। শ্রী বিগ্রহের সামনে প্রজল্প করা। शिव विग्रह के सामने प्रजल्प करना यानी कुछ व्यर्थ बात डिस्कस करना नहीं। भगवान के सामने से भगवान का एक गुण कीर्तन होना चाहिए, उन्हीं का बात होना चाहिए, उनका बातचीत होना चाहिए। क्लियर है ना? या नेक्स्ट। শ্রী বিগ্রহের সামনে ক্রন্দন। ये तो हम लोग करते हैं वगैरह के सामने, कहीं नहीं रोने को मौका मिलता तो वहां जाकर रुकते हैं। ये तो यहाँ लिखा ओहो, अच्छा अच्छा ठीक है। तो वो तो मांगने के लिए करते हैं ना माता जी। मांगने के लिए नहीं माता प्रभु जी, कहीं जब दुखी होता है मन तो भगवान के सामने ही रोने का इच्छा करता है। तो वही तो बात है, मांगना ही तो हुआ कि शांति दीजिए हमको, ये मुक्ति कर कुछ न कुछ भगवान के सामने क्रंदन, तो इसमें भी कुछ स्टैंडर्ड है, बता देता हूँ। हम समझ रहे हैं प्रश्न क्या है। ये तो आप अगर रोना वोना बहुत ज्यादा करना है वो थोड़ा साइड में करिए। फिर भगवान के सामने जाकर अगर आंसू निकल गया दैट इज ओके, लेकिन रोना का पार्ट भगवान के सामने नहीं करिएगा। प्रभु जी, मन दुखी होता है तो भगवान के सामने अपने आप ही आंसू निकलते ही रहते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ। इफ यू सी यू आर कंटिन्यूअसली क्राइंग प्रोफ्यूसली, प्लीज गो असाइड। और अगर आप रो रहे हैं तो भगवान के सामने मत जाइए। दोनों समझ में आ रहा है आप लोग को क्या? अगर भगवान के सामने है और फिर से वो भावना जिससे हम दुखी होते हैं वो मन में आ गया और आंख से टपकने लगा आंसू, तो इट्स बेटर, जब शास्त्र में लिखा है तो थोड़ा साइड चले जाइए। और अगर कहीं बहुत रो रहे हैं वह फिर वो रोते रोते भगवान के सामने मत आइए। उस स्थिति में भगवान को पसंद नहीं ये। अच्छा प्रभु, भाव में अगर अश्रु आए तो नहीं ना बुरी बात है। दर्शन करके, दर्शन का भाव से आए, दुखी उखी को साइड कर दीजिए। एक्चुअली जब भाव में अगर आंसू आते हैं वो तो क्या करें, होता है बहुत सारा समय में कि इमोशनली आदमी कॉल करता है। तो है बट মহাপ্রভু তো সবসময় দেখিয়েছে না অশ্রু কম্প শেদ, এগুলো তো না সবসময় ছিল। कृष्ण विरह वो भगवान से रिलेटेड है। कोई हम लोग का भौतिक चीज से डिस्टर्ब होकर भगवान के सामने वो ठीक नहीं है। ठीक, आउट ऑफ डिवोशनल सर्विस ठीक है, भक्ति में कुछ भगवान को दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, भगवान से विरह, कुछ आप यात्रा में गए थे 15 दिन आप भगवान का दर्शन नहीं किया, खोल के भगवान को दर्शन करके आंख से आंख, दैट इज ओके। लेकिन खिलौना नहीं दिया वह वो सब ठीक नहीं है भगवान के सामने। वृंदावन से आते समय इतना रोई बताने सोचे भी नहीं थे, इतना अश्रु आएगा, पूरा बस भर रोते, घंटों हम रोना मतलब विदाई के वक्त नहीं रोए थे शादी में, जैसे मायके से ससुराल इतना नहीं रोते जितना हम वहाँ वृंदावन से बिछोड़ते समय रोए थे। बहुत रोए थे और बच्चों लोग इंसल्ट लग रहा, मम्मी को क्या हो गया, मम्मी को क्या होगा, हम पूरा रोए जा रहे। अभी सोचते क्या हुआ था मेरे को। हरे कृष्ण। यस, नेक्स्ट। 14 নম্বর শ্রী বিগ্রহের সামনে অপর ব্যক্তির অনুগ্রহ। अनुग्रह माने प्रशंसा ना, भगवान का प्रशंसा कीजिए। आप संगिनी माता जी भगवान के सामने श्याम प्रभु का प्रशंसा कर रहे हैं तो ये तो फिर भगवान को ठीक नहीं लगेगा। हरे कृष्णा, ठीक है।
तो किसी का भी ग्लोरिफिकेशन करना है भगवान के सामने नहीं। ठीक है, यस राजीव प्रभु। श्री हिंदी में लिखा हो प्रभु जी। जैसे कभी कभी होते हैं ना मंदिर, वो कभी जैसे होते हैं मंदिर में, जैसे भक्त विग्रह के सामने गुरु महाराज या कोई सीनियर वैष्णव लेक्चर दे रहा है या दर्शन करे, तो उनको भजन प्रशंसा भी तो करते हैं, ग्लोरिफिकेशन होता है। दैट इज स्टिल ओके, वो भगवान को अच्छा लगेगा। एक ही सब चीज का एक ही उत्तर है, यू नो, जस्ट एक ही एसिड टेस्ट है, एक प्रश्न से सबको आपको उत्तर मिल जाएगा। क्या इससे भगवान खुश होंगे? आप खुद पूछिए अपने आप से, क्या अगर गुरुदेव का कुछ कॉन्टेक्स्ट में प्रशंसा हो तो भगवान को तो खुशी होगा, दैट इज ओके। हाँ, लेकिन सोचिए हम लोग भगवान के सामने खड़ा होकर अरे आज शेयर मार्केट का प्राइस बहुत हाई हो गया, फलाना फलाना पटेल जी को कितना मुनाफा हुआ होगा, कितना भाग्यवान है, हाँ कितना अरे फिर वो सब तो भगवान को एकदम, फिर पूछिए भगवान को पसंद होगा? एकदम नहीं। यस यस निर्मला माता जी, यस शशि माता जी। प्रभु जी हिंदी में लिखा हुआ अर्चा विग्रह के समक्ष अन्यों के साथ व्यवहार न करे, मैंने दूसरे के बारे में बातचीत, दूसरे का गुण कीर्तन, अन्यों के साथ व्यवहार, तो ये हमको समझ में आ रहा है। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, क्या है 14 नंबर ना। यस प्रभु। वन शुड नॉट डील विथ अदर्स बिफोर द डील विथ अदर्स। अच्छा, तो सोचिए हाँ किसी को आप बुला ले, मंदिर में आ जाइए, आपका आपसे जो वो फलाना फलाना मटेरियल का जो पैसा पाते हैं वही दे दीजिएगा। हरे कृष्णा, भगवान के सामने आया आपका कस्टमर, वो पैसा दे दिया, आपने उनको सामान दे दिया तो ये सब नहीं करना भगवान के सामने, यही बोला जाएगा। यस, किसी का कोई प्रश्न है? ओके, अगला। শ্রী বিগ্রহের সামনে কারো প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করা। हाँ, भगवान को अच्छा नहीं लगेगा ये सब। শ্রী বিগ্রহের সামনে কম্বল দ্বারা দেহ আবৃত করা। हरे कृष्णा, इंग्लिश में क्या लिखा है इसका 16 नंबर का? वन शुड नॉट कवर हिमसेल्फ विथ अ ब्लैंकेट। इसका क्या कारण हो सकता है चंदा माता जी? आप लोग भी प्रभु जी, हाँ, प्रभु जी अगर ठंडी के समय में जाएंगे मंदिर में तो शाल वगैरह नहीं ओढ़ेंगे? ये कंबल बोला है, आप कंबल लेके जाते हैं क्या मंदिर में? नहीं प्रभु जी, शाल जैसे ओढ़ने तो कंबल के बात कर रहे हैं। यस, क्यों आप लोग को लगता है कंबल मत मोड़िए? वहाँ दीनता को प्रदर्शित नहीं करना। हाँ, कंबल माने ये तो पूरा एकदम तमोगुनी चीज है ना। ये कभी घर में सोते वक्त हम लोग कंबल बेड में सोते वक्त यूज करेंगे, उसीलिए शायद बोला गया है कंबल मत। आप लोग में से कौन कौन कंबल ले जाते हैं मंदिर में ठंड के समय ओढ़ के? প্রভুজি, হতে পারে যারা এই ফুটপাতে থাকে ওটাই তার মানে একটাই জিনিস, সেটা নিয়ে অনেক সময় আসতে পারে। সেটা हाँ, नहीं तो कहाँ रखेंगे सचमुच। আরে বেচারা কম্বলটা কোথায় রেখে আসবে? কেউ যদি নিয়ে চলে যায়, दूसरा भिखारी लेके चला गया तो ठीक बोले। यस, ओके, नेक्स्ट। 17 নম্বর শ্রী বিগ্রহের সামনে পরনিন্দা করা। हाँ, तो ये भी भगवान को पसंद नहीं है। नेक्स्ट। শ্রী বিগ্রহের সামনে অন্যের প্রশংসা করা। শ্রী বিগ্রহের সামনে অশ্লীল ভাষায় কথা বলা। শ্রী বিগ্রহের সামনে বায়ু ত্যাগ করা। हरे कृष्णा, तो ये तो एक नेचुरल चीज है। इफ यू वांट टू पास विंड तो कम से कम बाहर जाकर पास। ये तो कोई ऐसा नहीं कि प्रभु जी मेरा जानबूझ के तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल। अब क्या कीजिएगा? तो बाहर चले जाइए। ये श्री विग्रह मतलब क्या? ये सिर्फ अगर ग्रंथ विग्रह भी है, भागवत पाठ भी हो रहा है, कहीं आपको वायु त्याग करना है, बाहर जाके करिए। ये हंसने का बात नहीं, ये तो हो ही सकता है। ये हम लोग इंसान है, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका नहीं होता है? ये नहीं, हर एक से होता है। और तो यू जस्ट गो असाइड, एक साइड में जाकर आप पास करके, विंड पास करके वापस आ जाइए। ठीक है, दैट इज द एटिकेट, वही कर्टेसी है। यस, नेक्स्ट। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও উপাচার বিনা পূজা করা। हाँ, ये कंजूसी से ज्यादा हम देखते हैं लोगों का आलसी।
আরে বাবা আবার প্লেটটা সাজাতে হবে, আবার গিয়ে হ্যাঁ কর্পূর শেষ হয়ে গেছে, আবার গিয়ে কিনে आनते হবে आरती করতে গেলে। ছাড়ो, मानसिक करेंगे, मानसिक अलाउड है, मानसिक हाँ, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। सामर्थ्य माने फाइनेंशियल सामर्थ्य नहीं, शारीरिक सामर्थ्य भी। लेकिन लेजीनेस हो जाता है बहुत बार। यस, पिंकी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रभु जी वो जब पंचपति सजाते हैं उसमें And घी की sound, बत्ती रहती है। sound not clear। हरे कृष्णा प्रभु जी हाँ, जब पंचप्रदीप सजाते हैं तो उसमें घी की बत्ती रहती है ना, हाँ, तो उसमें कपूर टच करवाना पड़ता है। हाँ। ऊपर ऊपर कर्पूर ऊपर सिर्फ हेड में, तो तुरंत पकड़ लेता है आग। ठीक है। ये और एक बार फिर से पढ़िए ये पॉइंट इंद्राणी माता जी का ये जरूरी है प्रभु जी ना, मतलब ये कपूर देना जरूरी है इसलिए पूछ रहे थे। हाँ मंदिर में तो हम लोग देते हैं क्योंकि फटाक से पकड़ लेता है, अगर आप आस्ते से पकड़ा सकते हैं नहीं देने से भी चलेगा। हाँ वही बात है कि जैसे अपने आप हो जाता है अच्छा से तो हाँ फिर तब उसको चलेगा। ठीक है। Yes, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहता हूँ इस प्रसंग में। एक बार पूर्ण पॉइंट সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও উপাচার বিনা পূজা করা। उपाचार बिना, ठीक है, एक तो बिना पूजा करा और एक है किसी किसी के पास उपाचार। मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं देखकर बता रहा हूँ, मैक्सिमम भक्तों के पास जो उपाचार है, ये उपाचार अगर आप देखिएगा लगेगा कि छोटा जब थे बच्चा तब दादी माता पिता जो खिलौना का दे देते हैं ना वैसा भी है। माने इतना छोटा जल शंख, इतना छोटा घंटी, इतना छोटा थाली भगवान के लिए, इतना छोटा शंख, बस उतना ही होगा, और प्लेट भी इतना छोटा। हालांकि घर में बहुत जगह है, मंदिर भी बड़ा है, लेकिन सब इतना टाइनी टाइनी। हमको ये समझ नहीं आया आज तक कि इतना टाइनी टाइनी क्यों खरीदता है। अपना किचन में जाकर देखिए अपना प्लेट कितना होगा, इतना बड़ा, अपना ग्लास कितना होगा, इतना बड़ा, और भगवान को जो जो दिया या स्पेशल आरती करेंगे मोर पंख इतना छोटा, ऐसे ऐसे करके मोर पंख, जब सबसे टाइनी। ये क्या एक शौक है क्या कि कोई आएगा तो दिखाएंगे देखो मेरे पास सबसे पृथ्वी का सबसे छोटा मोर पंख है क्या? आई डोंट अंडरस्टैंड ये ऐसे क्यों। एक प्रॉपर एक चामर होना चाहिए, प्रॉपर मोरपंख होना चाहिए, प्रॉपर जल शंख होना चाहिए जिसको हम पकड़ सकते हैं, प्रॉपरली आरती कर सकते हैं। इसमें मिनिएचर वर्जन खरीदने का क्या दरकार है? आप में से कोई कुछ बोलना चाहेंगे कि क्यों लोग ऐसा करता है? एकदम छोटा 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 सब कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हैं भगवान जब इतना छोटा छोटा क्यों करते हैं ऐसे? मिलता है प्रभु जी, देखते हैं भगवान के लिए छोटा कटोरी, छोटा गिलास, ऐसे सब जगह बड़ा भी मिलता तो भी है। मिलता है, मीडियम भी हाँ। मिलता है, लेकिन हाँ, yes। सबसे छोटा वाला क्यों खरीद के लाता है? एकदम छोटा छोटा। मैं कल जल शंख देखा, कल हम लोग का एक प्रोग्राम था, इतना छोटा जल शंख, इतना छोटा, कितना बोलेंगे छोटा। ये चाबी है, कल हम भी देखते प्रभु जी बहुत छोटा था। इतना ये जल शंख इतना चाबी का साइज का, ये ऐसे करके आरती की। क्यों? ये मिनिएचर वर्जन इंसानी तो यूज करेगा, और ऐसा नहीं कि छोटा बच्चा यूज करेगा इसको आरती करेगा। मैक्सिमम टाइम तो माता पिता आरती करता है। एक जैसे एक प्रॉपर एक नॉर्मल साइज होता है, क्यों नहीं? ऐसे क्षमता है और लोग अच्छा क्षमता है, ये सब ज्यादा महंगा नहीं होता है। एक आरती का सेट का कितना 1000 रुपया में सब कुछ आ जाना चाहिए, 1000-2000 मैक्सिमम। लोगों का क्षमता है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई दे बाय द टाइनीएस्ट साइज। आई मीन जो आरती करते हैं उनको कितना डिस्कम्फर्ट होगा ना, वो सब छोटा छोटा चीज से आरती करने का। कल मोर पंख भी बहुत छोटा था प्रभु जी, कल मोर पंख वाला जो था ना वो चावल वो भी बहुत कॉमिकल लगता है, हंसी लगता है। कल का मोरपंख, ये हम इसीलिए बोल रहे हैं, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि, बट माय पॉइंट इज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ऑफरिंग टू लॉर्ड, व्हाई सो टाइनी। मतलब भगवान मेरा प्रभु जी मेरा विग्रह इतना छोटा है। हम लोग को ध्यान देना चाहिए प्रभु जी, हम लोग का विग्रह का साइज से सब कुछ छोटा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट। हरे कृष्ण बाबू, ये जल शंख से स्नान कराना चाहिए कि नहीं? देखिए जल शंख से एक्चुअली हम लोग स्नान नहीं कराता है, ये लोगों का गलत फहमी है। हमको बलराम गोविंद प्रभु ये सुधारा था, हम भी सोचा था अभिषेक वगैरह तो होता है प्रभु। अभिषेक वगैरह होता है लक्ष्मी शंख को दिए। अच्छा अच्छा।
लौकी शंख और जल शंख में क्या फर्क है? लौकी शंख उल्टा है, उल्टा दाहिने मतलब तरफ। उल्टा तरफ उसका मुंह खुला है। हाँ हाँ, वो लौकी शंख को बोलता है, उससे अभिषेक होता है विग्रह का। लेकिन अगर किसी का पास अभिषेक नहीं है तो जल शंख से काम चला सकता है। हम्म। और उसी से लेकिन आचमनी लेकिन जो शंख हम लोग पू बजाते हैं, उससे भगवान का अभिषेक कभी मत कीजिएगा। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, वो कल तो नहीं। गलती से आरती का प्लेट में वो रख दिया था, पू वाला, तब भी नहीं, वो हम लोग का आरती प्लेट में कभी नहीं चलेगा। मैं क्या उसी से फिर मुख शुद्धि, माने भोग लगाने के बाद मुख शुद्धि। समझ पा रहे हैं आप लोग? वो जो शंख जो हम लोग बजाते हैं, हाँ, हाँ, वो हाँ। कभी भी गलती से आरती का प्लेट में मत रखिएगा, ठीक है? मुकुंद प्राण प्रभु सो गए शायद। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ जहाँ भगवान का सब सामान रखते हैं नीचे से अलग से, वहाँ पर रख सकते हैं वाला शंख? हाँ, वही रखना है, वो अलग है। वो उसका एक घट है, सोचिए एक घट रहता है, घट, ये घट है, हाँ, ये घट हम के लोग ऊपर का उसको रख दीजिए और वो एकदम दूर रख दीजिए। घट में पानी होगा, जब आप उसको बजाइएगा, बजाने के धोने के बाद वो पानी से उसको धो के रख दीजिएगा साइड में, ठीक है? और इसको ऊपर रख दीजिए ऐसे करके, घट के ऊपर शंख रख दीजिए, वो दूर में, ऑल्टर से दूर थोड़ा। प्रभु जी, जल शंख और अभिषेक शंख में क्या डिफरेंस होता है? जल शंख से देखिए, हम लोग स्नान नहीं कराते हैं, वो सोचिए आरती कर रहा, आरती के समय स्नान करा दिया, ऐसा नहीं। सोचिए आपके घर में गेस्ट आया, थोड़ा उनका हाथ पार धो रहा है, हालांकि आप उनको ऐसे ऐसे करके 3 बार ऊपर और 7 बार पूरा दिखाते हैं। इट्स जस्ट लाइक ऑफरिंग सम वाटर फॉर थोड़ा मुंह धोने के लिए। कोई आया तो थोड़ा वही पंच तत्व अर्पण करते हैं हम लोग। यू कैनॉट गिव अ बाथ टू समबडी। आप किसी का आरती कर रहे हैं, सोचिए ना, कोई कभी कभी हम लोग घर में भी व्यक्ति का आरती करते हैं ना, कोई अगर सोचिए कोई नया शादी करके आया घर में, हम लोग थोड़ा एक तरह दिया दिखाते हैं ना, ऐसे करके दिखाते हैं ना। हाँ। तो वैसे ही भगवान को आप संध्या समय आरती कर रहे हैं, तो क्या आरती के समय आप एकदम पानी डाल देंगे उनके पूरा शरीर में, स्नान कराएंगे क्या? नहीं। तो ऑल्दो इट लुक्स लाइक इदम अर्घम, लेकिन आप वो अर्घ से आप उनको थोड़ा पानी दे रहे, जस्ट लिटिल वाटर टू वॉश हिज फेस और थोड़ा हेयर, थोड़ा, दैट्स इट। और जब अभिषेक हो रहा है, अभिषेक के समय भगवान का वस्त्र खोला जाता है, दूसरा एक नॉर्मल टेम्पोररी वस्त्र पहनाते हैं, मालूम है ना? आप लोग देखे होंगे स्टेज में, उस समय तो प्रॉपर नहलाते हैं हम लोग भगवान को, अभिषेक करते हैं, अलग अलग शरबत देकर, फल का जूस देकर, मधु देकर, दूध देकर, दही देकर, गंगा पानी देकर, वो तो प्रॉपर स्नान होता है। उस समय लौकी शंख को हम लोग यूज करते हैं। घर में लक्ष्मी शंकर नहीं प्रभु, ठीक है, फिर उस समय ये अर्घम यूज कर लीजिए। अभी लक्ष्मी शंकर अर्घम में क्या फर्क है? अर्घम जो है वो छोटा साइज का होता है, वो नॉर्मल आरती के समय लगता है। लक्ष्मी शंकर एत बड़ो है, मुखटा उल्टो आछे, मुखटा उल्टो माने सामने वाला मुंह नहीं, वो बजा नहीं पाएंगे आप। उसका जो जहां पानी डालते हैं ना, वो ऑपोजिट साइड में वैसे ही बनाया गया है, उसको भगवान ने उसी बनाया, ठीक है? লম্বাও হয় প্রভুজি, ওগুলো অনেক লম্বা বড় হয়। छोटो हाँ, एक बाएं से खुलता है, एक दाहिने से हरे खुलता कृष्णा है। प्रभु जी, हम लोग को भी ऐसा शंख लाना चाहिए था। घर में अगर स्नान कराना है तो उसको दक्षिणवर्ती शंख क्या है, बोलते हैं। 200-300 रुपए का ही दाम है। कौन सा? हाँ, ओकेजन के समय में स्नान कराते हैं प्रभु जी, तो प्लीज जब चरणामृत के लिए साथ या कोई हाँ, चीज करिए, करिए। हाँ, 200-300 रुपए दाम होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। छोटा साइज अभी लगेगा। तक तो मंदिर में छोटा लाना पड़ता है, मंदिर का मंदिर में सब कुछ ऐश्वर्य रूप में करना पड़ता है, क्योंकि हजारों हजारों लोग आते हैं देखने में। घर में तो आप छोटा ला ही सकते हैं। नेक्स्ट। প্রভুজি আচমন করায় আমি শুনেছি, জলশঙ্খ দিয়ে সবকিছু দেওয়ার পরে, আরতি করার পর জলশঙ্খ মানে মুখ ধুয়ে দেওয়া, মনে মানসিক ভাবে, এরকম কি? प्रभु एक इस्कॉन डिवोटी का मतलब कोई ब्रह्मचारी थे, उनका वीडियो देखे थे, तो बोले जो 5 चीज हम लोग करते हैं, अग्नि अग्नि मतलब पंच तत्व जो है भगवान को, उसी के द्वारा उस वही चीज हम लोग अर्पण करते हैं। तो अग्नि तत्व हो गया, जल तत्व हो गया, वायु तत्व हो गया, फ्लावर देते हैं तो मतलब पृथ्वी से निकला हुआ मतलब पृथ्वी तत्व हो गया, ऐसे करके हम लोग 5 तत्व को अर्पण करते हैं उनको। नेक्स्ट। 22 নম্বর, ভগবানকে অনিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণ করা। हाँ, तो कुछ अगर नहीं दिया और वो खा लिया, जैसे एक बार आप लोग को मालूम है, बाय मिस्टेक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मैंगो खा लिया था। फिर उनके पिताजी ने बोला, अरे तुम मैंगो खा लियो, तो ऑफर नहीं किया था? तो उन्होंने प्रण क्या किया, आजीवन मैंगो नहीं खाएंगे। हरे कृष्ण।
तो ऐसे गलती आप लोग मत करिए, हम लोग भी नहीं करेंगे, ठीक है? कुछ भी आप करेंगे तो भगवान को ऑफर करके करेंगे, और ऐसे अगर गलती हो गया तो आजीवन हरे कृष्ण। नहीं प्रभु, वो तो नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट। 23 নম্বর, যে যে সময়ে যে সমস্ত ফল উৎপন্ন হয় সেগুলি ভগবানকে নিবেদন না করা। ये भी एक अपराध। सीजनल चीज आप भगवान को नहीं दे रहे हैं, आप इंटरनेशनल फल दे रहे हैं, जो कब कहाँ कौन सा देश में 2 महीना बाद आपके घर में आया पैकिंग वैकिंग होकर, है ना? नहीं, भगवान को लोकल फ्रूट्स एंड फल वो अच्छा ज्यादा लगता है। आपने ख्याल किया भगवान कृष्णचंद्र को देखिएगा, बोनोमाला, उनका एक नाम भी है बनोमाली, तो यहाँ वहाँ का सब लोकल फ्रूट्स, लोकल फ्लावर्स, ये ज्यादा भगवान को पसंद है, ठीक है? ये इंटरनेशनल में मत जाएगा, नहीं नहीं, लोग देखेगा, लोग सोचेगा कि सस्ते में श्रृंगार करा दिया, ऐसा नहीं सोचने का। लोकल चीज भगवान को ज्यादा पसंद है, ठीक है? इंटरनेशनल नॉट नीडेड। नेक्स्ट। প্রভুজি, ইন্টারন্যাশনাল জিনিস যদি আমার ঘরে এলো প্যাকিং করে, তা আমি ওটা ভগবানকে অফার করব না? 190 कर दीजिए, कोई आया तो ठीक है, क्या करिएगा? भगवान नहीं तो अगर सप्लाई ऑफर वाला नहीं चीज लेना नहीं पसंद किया, उसको छुइएगा मत। अगर ऑफर नहीं करेंगे तो उसको टच भी नहीं कर पाएंगे। हरे कृष्ण। करते। अपने से चुनना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है, तो वही पसंद है। हाँ, उस समय ट्राई गो फॉर लोकल, बिकॉज कृष्णा लाइक्स लोकल। नेक्स्ट। যে যে সময় 24 নম্বর, ভগবানকে নিবেদিত ভোগের অবশিষ্ট অংশ পুনরায় নিবেদন। फिर से बोलिए। ভগবানকে নিবেদিত ভোগের অবশিষ্ট অংশ পুনরায় নিবেদন, মানে দুবার অফার করা একই জিনিস রান্না করে। शशि माता जी क्या लिखा है? लिखा प्रभु जी, अर्चा विग्रह को ताजे अछूते फल अर्पित करें। কত নম্বর এটা? 24 नंबर। ভগবানকে নিবেদিত ভোগের অবশিষ্ট অংশ পুনরায় নিবেদন। अच्छा, माने सोचिए भोगेर निवेदित, तो सोचिए आपने पायस बनाया, ठीक है? 70% पायस आपने भगवान को भोग में लगाया, और 30% रख दिया आप, वो दोपहर को लगाएंगे। कर सकते हैं ना ऐसे? कर ही सकते हैं। और फिर दोपहर को फिर से आपने खीर या पायस, वो जो 30% आपने नहीं भगवान को ऑफर किया था, वो ऑफर किया। हमको तो ये समझ में आ रहा है। और दूसरा फल लिखा है, वही है प्रभु, वही है। देखिए, दूसरा कुछ मत है तो सुन लेते हैं। हाँ, तो फल के बारे में लिखा है, अछूते फल अर्पित करें। मैं फल या स्वीट राइस एक ही बात है, कोई भी आइटम हो। सोचिए आपने 1 किलो अंगूर लाया, लेकिन अभी आपने 700 ग्राम अंगूर को भगवान के भोग दिया, 300 नहीं दिया, दोपहर को दे सकते 300। नेक्स्ट। প্রভুজি, এটা তো করি আমি, তো একটা ফ্রিজ আছে যেখানে সব প্রতিদিন তো বাজারে যাওয়া সম্ভব হয় না, ফল এনেই রাখা হয়, ওখান থেকেই দিই ঠাকুরকে। সে তো অবশিষ্ট অংশ হলো কি তাহলে, জানি না। রেগুলার বাজারে যাওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। हाँ, तो ठीक ही तो है। আপনি ফল এনে ধরুন 1 কিলো আম কিনেছেন, আপনি একটা আম দিলেন, ঠিক আছে? যতটুকু আপনার, সত্যি কথা বলতে আমাদের যতটুকু দরকার ততটুকু ভগবানকে নিবেদন করি, ঠিক না? হ্যাঁ, তাই তো প্র্যাকটিক্যাল হতে হয়। তো আমাদের তো গজলে ধুয়ে দিলে বোধহয় নতুন হয়ে যায় নাকি প্রভু? पूरा बोलना पड़ेगा अशोक प्रभु, पूरा बोलना पड़ेगा। बोले प्रभु कि जो फिर से दोबारा हम भोग लगाते हैं, अगर वो गंगा जल से फिर पवित्र करके भोग लगाएं तो ठीक। पवित्र करेंगे। आई मीन, आपने तो पहले धोकर रख दिया फ्रिज में, आप अभी 2 किलो मैंगो लाया था, आपने 1 किलो आपने अभी निवेदन किया, फिर गंगा जल अशुद्ध कहाँ हुआ? वो तो खा लिया हम लोग। फिर दोपहर को आपने फिर दूसरा किलो निवेदन किया। हम जैसे नमकीन वगैरह का भी तो यही करते हैं प्रभु जी, डिब्बा मिला के अच्छे से रखते हैं, फिर उसको जो थोड़ा थोड़ा जितना जरूरत लगता है उतना भोग लगाते हैं भगवान को। हाँ, एकदम ठीक है। वो डिब्बा अलग से भरा रखा हुआ है। वो तो प्रभु रोज जो भोग लगता है, मिश्री वगैरह, किशमिश वगैरह, वो तो डिब्बा में ही रखा रहता है, उसमें से ले भोग लगाया जाता है। तो गंगा जल कहाँ से आया? वही मैं पूछ वो रहा तो हूँ। फल उल के मामले बोले प्रभु कि फ्रिज में रखते हैं या झोला में रखते हैं, तो चढ़ाने के समय धो लेते हैं। वो तो ठीक है, धो लेते हैं। गंगा जल से, आप शायद गंगा किनारे में रहते तो सब चीज गंगा जल से धोते हैं, लेकिन नॉर्मल वाटर से भी चलेगा। यस, और कोई
वो फल को एक दूसरे जो चढ़ाए हुए फल से वो जो रखा हुआ फल में छूना नहीं चाहिए। हाँ, तो अलग अलग इसलिए अगर आपके पास एक ही फ्रिज है तो फ्रिज का नीचे वाला कंपार्टमेंट छोड़ दीजिए ऑफर्ड आइटम के लिए। ऑफर्ड वस्तु भी रखना ऑफर पड़ता है किया कि हुआ कभी- बाहर ही रखना चाहिए, मतलब ताकि उसको यूज कर लीजिए। नहीं, अगर आप सोचिए फ्रिज एक ही है, आपने फल ऑफर कर दिया लेकिन अभी 1 किलो खाएंगे नहीं, तो क्या कीजिएगा? तो प्रसादी फल को रखने के लिए फ्रिज का एक अलग फ्रिज हो तो सबसे बढ़िया, प्रसादी फ्रिज और भोग वाला फ्रिज। और अगर नहीं है तो एक कंपार्टमेंट अलग रख दीजिए प्रसादी चीज रखने के लिए। যে একটা তাক পুরো ফুল ফলের জন্য আলাদাই রাখতে হবে, ওর মধ্যে অন্য কিছু রাখা যাবে না। প্রসাদির জন্য, প্রসাদির জন্য। প্রসাদ তো আমাদের নর্মাল ফ্রিজে চলে এলো, আর আচ্ছা, যেটা তো- ভগবানকে অফার করা হবে সেটার জন্য পুরো আলাদাই তাক আছে, ওখানে আর কিছু রাখা হয় না। তাক মানে কি ফ্রিজের তাক বলছেন? হ্যাঁ, ভেজিটেবল একটা ট্রে আছে, আর দুটো ট্রে আছে, একটা ট্রেতে সবসময় যেটা দেবো সেটা রাখি। ওকে, ভেরি গুড। নেক্সট। ভগবানের শ্রী বিগ্রহ পশ্চাতে রেখে উপবেশন। আবার ভগবানের শ্রী বিগ্রহ পশ্চাতে রেখে উপবেশন, উপবেশনটা বুঝলাম না। हिंदी में क्या लिखा है? पीट करके बैठना लिखा अच्छा वृद्धा की ओर पीठ करके न बैठ। ओ अच्छा, वो तो ठीक है। हरे ठीक कृष्णा प्रभु जी, जैसे हाँ। गुरु पूजा हो रहा था प्रभु, तो सब इधर भगवान की तरफ पीठ करके परसों जैसे हो रहा था, तो ये कुछ अनकंफर्ट लगा था मेरे को। तो गुरु पूजा जब भगवान का शुद्ध भक्त का पूजा हो रहा है, हाँ, एक तो है उनको हम लोग भगवान के प्रतिनिधि के रूप में पूजा कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद को, तो भगवान की तरफ थोड़ा एंगल करके पीठ एकदम डायरेक्ट नहीं, थोड़ा एंगल करके रखना चाहिए, ऐसे करके सोचिए। ये परसों देखे ना ये कि सब प्रभुपाद जी है, ये प्रभुपाद जी है, सामने आप देख रहे हैं प्रभुपाद जी, तो ऐसे एंगल में खड़ा करके उनको पूजा कीजिए। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? वी शेप, हाँ वी प्रभु, माने हाँ, थोड़ा साइड में, साइड साइड। वी होता है ना, वी 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 करके बीच में भगवान, ये एंगल में, ये एंगल में, तब कोई अपराध नहीं होगा। आप तो भजन साइड में ही कर रहे थे। हाँ, साइड प्लस वो थोड़ा वो एंगल टेढ़ा करके थोड़ा, बस पीठ से देखे परसों हमके बिल्कुल भगवान की तरफ से पीठ करके कर रहा। हाँ, थोड़ा कोना करके करना चाहिए सबको। या नेक्स्ट। 26 নম্বর, শ্রী বিগ্রহের সামনে অন্য কাউকে প্রণতি নিবেদন করা করা উচিত না, নমস্কার করা উচিত না কাউকে। मानसिक में कर सकते हैं। सोचिए गुरुदेव आ गया, गुरु महाराज एसचन, तो मानसिक कर सकते हैं। या व्यास आसन में बैठकर भागवत दे रहा है कोई, तब तो पंचांग कर ही सकते हैं, क्योंकि वो व्यास देव जी है, व्यास आसन जो है उनको आप सम्मान दे रहे हैं, वो साक्षात भगवान का ही अवतार है। ठीक है, नेक्स्ट। গুরুদেবকে স্তব না করে উপবেশন। क्या हिंदी में क्या लिखा है इसका? अपने गुरु के अनुमति के बिना अच्छा विग्रह के निकट न बैठ। कितना नंबर है? 27। One should not sit near the deity without taking the spiritual master's permission। यानी अगर गुरुदेव सोचेगा ये योग्य व्यक्ति है, भगवान के इतना निकट बैठ रहा है, हाँ, तो इनका क्राइटेरिया फुलफिल है, तो अगर गुरुदेव अलाउ किया तो सामने जाकर भगवान के सामने निकट बैठ सकते हैं। अभी ये ज्यादा डिटेल दिया नहीं तो हम भी नहीं बता पाएंगे इसके मेरे में। निकट माने क्या प्रभु जी, कितना निकट, गर्भगृह में क्या? यस, नेक्स्ट। শ্রী বিগ্রহের সামনে আত্মপ্রশংসা, নিজের প্রশংসা করা। हाँ, दूसरे का भी नहीं करना चाहिए, अपना भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट। দেবদেবীদের নিন্দা। ये भगवान का सब भक्त हैं, देव देवती, तो वो भगवान को पसंद नहीं है। नेक्स्ट। শ্রী বিগ্রহের সামনে অপর ব্যক্তির প্রতি নির্দয় হওয়া। हाँ, ये तो भगवान के सामने भी नहीं, भगवान के पीछे भी नहीं, कभी नहीं करना चाहिए, निर्दय नहीं होना चाहिए किसी से। या नेक्स्ट। মন্দিরে উৎসব অনুষ্ঠান না করা। না করা? হ্যাঁ, অনুষ্ঠান মানে আপনার অন্য প্রোগ্রাম মন্দিরের মধ্যে না করা, সেইটার কথা বলছি। ओ अच्छा, अच्छा, हिंदी में लिखा मंदिर के सारे उत्सव मनाए। हाँ, ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग वजह जैसे लिखा हुआ है, तो मंदिर में सब अनुष्ठान ना कराटाई अपराध। हाँ, करना चाहिए। भगवान का जो जो जन्माष्टमी, राधाष्टमी, जो जो फेस्टिवल सब मनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट। अच्छा, इस प्रसंग में मैं एक चीज बताना चाहूंगा। सोचिए
घर में भी जन्माष्टमी है, मंदिर में भी जन्माष्टमी है, तो क्या करे प्रभु, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, वो एक थोड़ा दुविधा हो जाता है। तो घर में बहुत छोटा से पालन कीजिए, लेकिन मंदिर में अटेंड कीजिए भक्तों की सामग्री में। यही इसका सोल्यूशन है। घर में करिए, बट बहुत छोटा आकार में करिए कि आपका मंदिर जाना और मंदिर में अटेंड करना वो डिस्टर्ब ना हो। प्रभु जी मैं तो बहुत बड़ा करते आया हूँ इतना साल घर में, उसको थोड़ा छोटा कर दीजिए। ये उत्तर ठीक है। नेक्स्ट। শিবিগ্রহের সামনে কলহ করা উচিত हाँ, না। किसी से झमेला झगड़ा करना वो ठीक नहीं है। এই 32টি সেবাপরাধ যাতে না হয় সেই সম্বন্ধে সবসময় সতর্ক থাকা উচিত। तो ये सब भक्ति रसामृत सिंधु में दिया हुआ ये 32 डोंट्स जो है, ये 32 डोंट्स है, ठीक है। ये एकदम एज इट इज दिया हुआ है भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में, और एक एक के बारे में थोड़ा डिटेल भी शायद दिया हुआ है वहां। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রহিল গ্রন্থ হরি বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। चरितमृतम की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौड़ भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।